Chapter 21, Direct and Indirect Speech. Let's learn direct and indirect speech. There are two ways we can convey or narrate what someone हैज़ सेड यूजिंग डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच. ओके, दो वेज हैं जिससे हम बता सकते हैं कि सामने वाले जो पर्सन है ओके उसने डायरेक्ट स्पीच बोली है या फिर इनडायरेक्ट स्पीच बोली है. डायरेक्ट स्पीच रिपोर्ट्स द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ ए स्पीकर. डायरेक्ट स्पीच वो स्पीच होती है जो स्पीकर ने जो बोला होता है एग्जैक्टली वही होता है. इट इज पुट विद इन कोटेशन मार्क्स और आफ्टर कॉलन. ओके, इसके अंदर हम कोटेशन मार्क्स और कॉलन्स यूज़ करते हैं. फर्स्ट वर्ड इनसाइड द कोटेशन मार्क्स इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड. कोटेशन मार्क्स के अंदर का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटलाइज्ड ही होगा. Indirect speech reports what the speaker has said but not in his or own words. Okay, indirect speech या reported speech बोल सकते हैं हम. वो क्या होता है, exactly words नहीं होते, अपने हिसाब से उसने बोला होता है लेकिन meaning वही रहता है, बस words change रहते हैं उसके अंदर, अपने वर्ड्स में वो बोलता है, उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच. इट डजेंट यूज कोटेशन मार्क्स और कॉलन. इसमें कोई कोटेशन मार्क्स या कॉलन नहीं होती. कंटेंट ऑफ द स्पीच इज इंट्रोड्यूस विद द कंजंक्शन दैट. ओके, कंजंक्शंस का यूज़ हम करेंगे इसके अंदर इंडायरेक्ट या रिपोर्टेड स्पीच में दैट का. However, sometimes the conjunction may be dropped too. Okay, कभी कभी conjunctions भी नहीं होता. Let's learn to change direct speech into reported speech. And changing a direct speech to reported speech, there are certain rules that we need to follow. Okay, direct speech से अगर हमें indirect speech में करना है, reported speech में अगर इसको ट्रांसफ़र करना है तो हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. जैसे सिंपल प्रेजेंट है तो हमें सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो हम उसके अंदर का जो वर्ब है कोटेशन मार्क्स का वो चेंज नहीं करेंगे. द वर्ब विद इन द कोटेशन मार्क डज नॉट चेंज. कोटेशन मार्क्स के अंदर का जो वर्ब है उसे हम चेंज नहीं करेंगे. कब चेंज नहीं करेंगे, जब सिंपल प्रेजेंट या सिंपल फ्यूचर टेंस वहाँ पे होगा. कहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब में, मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में, indirect sentence के अंदर. the same applies to any universal truth that has been spoken for example, और तो और universal truth अगर है किसी sentence के अंदर, means universal truth means जिसे सबको पता है कि वो सच है. ओके, वो चीज़ सच है. like ओके, example, I confirm I love my country. एंड रिपोर्टेड स्पीच वो डायरेक्ट थी. अब रिपोर्टेड स्पीच, आई कन्फर्म दैट आई लव माई कंट्री. ओके, सो दिस इज रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच. He says I did not know direct speech. He says that he did not know reported speech. Okay, like that. If the direct speech is preceded by said, then the verbs within the quotation marks change to the past tense. Okay, अगर direct speech के अंदर said से start हुआ है, okay, said है means started नहीं, said है अगर direct speech के अंदर तो quotation marks change हो जाएगा. Okay, then the verbs within the quotation marks change to the past tense. For example, she said I have a headache. Direct speech. Reported speech, she said that she had a headache. She said my mother cooks well. Direct speech, she said that her mother cooked well. Reported speech. If the direct speech has a wrong or word showing nearness, that it is changed to word showing distance. For example, he said I live here. He said that he lived there. She asked what is this. She asked what that was. He said I will come today. He said that he would come that day. They said we will come tonight. They said that they would come that night. Pronoun or the subject in the reported speech changes according to the pronoun or subject or object of the reporting verb. Possessive pronouns his, her, my, their, your, etc. change according to the subject or object of the first sentence. For example, he said I swim every morning. Direct speech. Reported speech, he said that he swam every morning. Okay, so you will definitely be understand after taking practice time and exercises. Okay, pronoun or the subject in the reported speech changes according to the, okay, ये तो complete, ये तो हो गया. The models could, would, should, might and ought to do not change in reported speech. For example, he said I might come a little late. She said they ought to have come when needed. Direct speech, he said that he might come a little late. She said that they ought to have come when needed. Speech. Okay, एक चीज़ ये है कि मॉडल्स अगर कोई है, मॉडल्स है जैसे could, would, should, ऑल दिस आर मॉडल्स. मॉडल्स चेंज नहीं होंगे चाहे वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में हो या डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हो. मॉडल्स जो है वो वही रहेंगे, उसको हम चेंज नहीं करेंगे. उसके अलावा जितना भी होगा उसे हम चेंज करना पड़ेगा हमें. दे सेड वी कुड अकोमोडेट वन मोर. डायरेक्ट स्पीच, दे सेड दैट दे कुड अकोमोडेट वन मोर. Arjun said I would rather not go. He said you should step careful in the jungle. Arjun said that he would rather not go. He said that we should step careful in the jungle.
The use of that in reported speech is often optional in modern English, that is never used in interrogative sentences. Instead, if or whether is used. For example, Julie asks, will you come to the shop with me? Direct speech. Julie asked me if I would go to the shop with her. Said and told are commonly used as reporting verbs. However, there are many other verbs that may be used to make the sentences more interesting, such as accused, admitted, advised, all this is, etc. etc. प्रैक्टिस टाइम. चेंज द स्पीच ऑफ दिस सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. हमें यहाँ पे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है. मीन्स डायरेक्ट है, जो सामने वाले ने एग्जैक्टली जो बोला है उसको हमें शफल करके हमें इनडायरेक्ट करना है, अपने हिसाब से करना है. शी सेड आई टीच इंग्लिश ऑनलाइन. शी सेड दैट शी टॉट इंग्लिश ऑनलाइन. ओके, ऑल दिस इज. चेंज द स्पीच ऑफ दिस सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. अभी ये भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ही है. लेट्स लर्न कन्वर्जन of sentences in reported speech. Interrogative, assertive, imperative and exclamatory are the four kinds of sentences. Each of these sentences follows a different rule when changing from direct to indirect. Interrogative, assertive, imperative और exclamatory ये चार तरह के sentences होते हैं जिसके अंदर भी कुछ rules change करना पड़ता है. ओके, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करने के लिए इसमें भी कुछ रूल्स हमें लगाने पड़ते हैं अगर हमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट करना है तो. Conversion of assertive sentences. Assertive sentences are simple statements that declare something. Assertive sentences वो होते हैं जो कुछ बताते हैं हमें, कुछ डिक्लेयर करते हैं. To convert an assertive sentence into reported speech, अगर हमें assertive sentence है और उसको reported speech में करना है, indirect करना है, तो क्या करना पड़ेगा? Remove the quotation marks and use the conjunction that. quotation marks को हटाना पड़ेगा और conjunction that को यूज़ करना पड़ेगा. Change the reporting verb from said to told. और एक और चीज़ है, reporting verb जो है सेड, ओके, उसको हमें टोल्ड करना पड़ेगा. सेड है तो वहाँ पे टोल्ड लगाना पड़ेगा उसकी जगह पे. फॉर एग्जांपल, नैन्सी सेड टू जॉनी यू कैन डू दिस वर्क. नैन्सी टोल्ड जॉनी दैट ही कुड डू दैट वर्क. ऑल दिस. कन्वर्जन ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस और कमांड्स. इम्पेरेटिव सेंटेंस किसको बोलते हैं? या कि सेंटेंस के अंदर कभी रिक्वेस्ट है, ओके, या कोई सजेशंस है सेंटेंस के अंदर, या कोई एडवाइस है, या फिर कोई कमांड दे रहा है, तो उस सेंटेंस को हम बोलेंगे इम्पेरेटिव सेंटेंस. टू कन्वर्ट एन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इनटू रिपोर्टेड स्पीच, अगर हमें रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट करना है, अगर डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस करना है, तो हम क्या करना पड़ेगा? रिमूव द कोटेशन मार्क्स एंड यूज टू इफ इट इज़ एन अफर्मेटिव. ओके, कोटेशन मार्क्स को रिमूव करना पड़ेगा और टू लगाना पड़ेगा वहाँ पे अगर अफर्मेटिव है तो, एंड नॉट टू इफ द सेंटेंस बिगिन विथ डोंट. omit the word please and use the word request instead of say. ओके, हमें प्लीज़ को हटाना पड़ेगा. अगर किसी वर्ड के अंदर प्लीज़ आ रहा है तो हमें उसकी जगह पे हमें रिक्वेस्ट लगाना पड़ेगा. रिपोर्टिंग वर्ब से और से चेंजेस टू ऑर्डर, टेल, कमांड, इंस्ट्रक्ट एक्सेट्रा. ओके, फॉर एग्जाम्पल, द पुअर मैन सेड टू देम प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट. द पुअर मैन रिक्वेस्टेड them to give him something to eat. Conversion of interrogative sentences. Interrogative sentences ask questions and end with a question mark. Interrogative sentences हमें पता ही है कि उसके अंदर क्या होता है, questions ask होते हैं. Interrogative sentence के अंदर हम questions पूछते हैं. End with a question mark. लास्ट में हमेशा question marks आता है उसमें. To convert an interrogative sentence into reported speech. अगर हमें कन्वर्ट करना है इंटरोगेटिव सेंटेंस को रिपोर्टेड स्पीच में, मीन्स इनडायरेक्ट स्पीच में, तो कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे. जैसे रिमूव द कोटेशन मार्क्स एंड द क्वेश्चन मार्क्स. कोटेशन मार्क्स और क्वेश्चन मार्क्स को हटाना पड़ेगा. यूज इफ और वेदर इफ द सेंटेंस इनसाइड द कोटेशन मार्क्स बिगिन विद एन ऑक्सिलरी वर्ब. अगर कोटेशन मार्क्स के अंदर का जो सेंटेंस है वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हमें वहाँ पे इफ़ और वेदर का इस्तेमाल करना पड़ेगा. यूज क्वेश्चन वर्ड्स सच एज व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, वो एक्सेट्रा इफ इट डज नॉट बिगिन विद ऑक्सिलरी वर्ब. अगर ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्टिंग नहीं है तो हमें व्हाट, व्हेन और इस तरह के सेंटेंस का यूज़ करना पड़ेगा. omit the use of that and helping verbs do, does, did. ओके, यूज दैट का यूज़ हमें omit करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, और हमें do, does, did लगाना पड़ेगा. चेंज द रिपोर्टेड वर्ब से और said टू आस्क और इंक्वायर. से हमें said करना पड़ेगा वहाँ पे. फॉर एग्जाम्पल, डेविड said टू स्टैनली डू यू लाइक एप्पल्स. डेविड आस्क स्टैनली if he liked apples. Conversion of exclamatory sentences. Exclamatory sentences express a strong emotion or feeling. Exclamatory sentence express करते हैं एक strong भावना, ओके, एक feeling या फिर किसी भी तरह का कोई भी
अचानक वाला जो सडन फीलिंग्स होती है ना, इमोशंस होता है, अचानक वाला इमोशंस होता है या फीलिंग्स होती है, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं. To convert an exclamatory sentence into reported speech, then the exclamatory sentence into an assertive sentence and remove the quotation marks and the exclamation mark. अगर हमें exclamatory sentence है और उसको हमें रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्वोटेशन मार्क्स और एक्सक्लेमेशन मार्क्स को हटाना पड़ेगा और वहाँ पे असर्टिव सेंटेंस कर देना पड़ेगा. सो असर्टिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को असर्टिव करना पड़ेगा. यूज़ द कंजंक्शन दैट एंड एट द वर्ड वेरी. कंजंक्शन वर्ड दैट का यूज़ करना पड़ेगा और वेरी भी यूज़ कर सकते हैं हम. omit the use of various interjections like oh alas, okay, जितने भी interjections है oh alas हो रहा, okay, all these we have to remove. हमें इसे चेंज करना पड़ेगा. चेंज द रिपोर्टेड वर्ब से और से टू एक्सक्लेम. यूज़ अ फॉर्म ऑफ द वर्ब बी इफ़ द वर्ब इज़ मिसिंग. अगर वर्ब वहाँ पे नहीं है तो हमें बी यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, श्वेता सेड हाउ ब्यूटीफुल द पेंटिंग इज़. श्वेता एक्सक्लेम्ड दैट द पेंटिंग वॉज वेरी ब्यूटीफुल. यहाँ पे भी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट ही है. यहाँ पे क्वेश्चन, लेट्स डू मोर क्वेश्चन. ए के अंदर देखो मैंने अंडरलाइन किया है, वही लिखना है, बाकी के कट किए हुए. और जहाँ पे 2 या 3 वर्ड्स मिसिंग हैं तो वहाँ पे मैंने प्लस करके देखो दिया है, वहाँ पे वो लगाना है. देखो जैसे फर्स्ट है शी सेड दैट शी वाज बाइंग अ कॉफ़ी ग्राइंडर दैट डे. तो शी सेड, फिर यहाँ पे क्वोटेशन मार्क्स लगाए मैंने. आई एम बाइंग अ कॉफ़ी ग्राइंडर दैट टुडे. ओके, यहाँ पे डे से पहले मैंने टी ओ प्लस किया है, तो ये मिस्टेक करना मत भूलना, सॉरी मिस्टेक मत करना. वर्ड को चेंज मत करना, जैसा मैंने बोला है वैसे ही लिखना. She said she couldn't remember what she said. She said, quotation marks, I cannot remember what I said. देखो क्वोटेशन मार्क्स में मैंने उसको भी कैंसिल किया हुआ है, तो वो भी ध्यान देना. कहीं कहीं पे क्वोटेशन मार्क्स नहीं लगाना है तो वहाँ पे कैंसिल भी किया है मैंने, इसमें नहीं है. बाकी तो आप कर ही लोगे. लास्ट में ये लर्न विद फन है. ओके, इसको अपने हिसाब से आप कहाँ कहाँ पे क्वोटेशन मार्क्स लगाना है, कॉमा लगाना है, कॉर्नर लगाना है, यू हैव टू डू.